خدا کی قدرت کا تو میں ہمیشہ سے قائل تھا. مجھے ہر لمحے یہ احساس رہا تھا کہ میری اپنی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن غیبی قوتیں میری مددگار اور نگران رہتی ہیں اور مجھے جگہ جگہ کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں. بلیک پلان کی فائل کا اس طرح مل جانا ایسی ہی قوت کا کرشمہ تھا. میں نے اس پیکٹ کو اپنے قبضے میں کر لیا جس پر بلیک پلان لکھا ہوا تھا اور پھر دوسرے پیکٹوں پر لکھے ہوئے نام پڑھنے لگا. جیمز پوکر کی شخصیت میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی. وہ تھا کیا چیز؟ اس کے لیے بینک کا نام لیا گیا تھا اور اس نام کی یہی وجہ ہو سکتی تھی کہ اس کے پاس بہت سی معلومات تھی. اس وقت میں تمام پیکٹوں کو کھول کر تو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن بلیک پلان فائل میں نے قبضے میں کر لی. خیال یہی تھا کہ کسی مناسب جگہ بیٹھ کر اسے دیکھوں گا. فائل کو میں نے اپنے سینے پر رکھ کر قمیص کے بٹن بند کیے اور فیصلہ کیا کہ یہاں سے نکل کر کوئی محفوظ پناہ گاہ تلاش کی جانی چاہیے. چنانچہ واپس ڈرائنگ روم میں آ کر میں نے اپنا سامان ہاتھ میں اٹھایا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا. ابھی میں نے دروازے کا ہینڈل کھولا ہی تھا کہ دفتن مجھے دروازے کے سامنے کسی کار کے بریکوں کی چرچراہٹ سنائی دی. میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا. دروازے میں ہلکی سی جھرری پیدا کر کے میں نے باہر دیکھا تو 3 آدمی اسی طرف آ رہے تھے. ان میں سب سے آگے جو شخص تھا وہ سفید پتلون اور سرخ جیکٹ میں ملبوس تھا. سفید بالوں کے نیچے ایک جاندار چہرہ اور زبردست تنوتوش نظر آ رہا تھا. میں نے کسی چوکنے چیتے کی مانند ادھر ادھر دیکھا. ان لوگوں کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہ کون ہیں. پھر میری نگاہیں بائیں سمت اٹھ گئیں جہاں تقریباً 6 فٹ بلند ایک دیوار نظر آ رہی تھی. سامنے کے حصے سے تو نکلنا اب ممکن ہی نہیں رہا تھا چونکہ وہاں ان لوگوں سے مٹ بھیڑ ہو جاتی. اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں تھا کہ میں پوری قوت سے دروازہ کھول کر اس دیوار کی جانب چھلانگ لگا دوں. گرین لاٹ میں میری آمد کا مقصد پورا ہو گیا تھا. بلیک پلان فائل میں جو کچھ بھی تھا وہ میرے لیے یقیناً کارآمد ثابت ہو سکتا تھا. ایک لمحے کے لیے میں نے یہ سب سوچا اور اس کے بعد پھرتی سے دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی. وہ تینوں بری طرح اچھل پڑے تھے. میں نے پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھا بلکہ برق رفتاری سے دوڑتا ہوا بنگلے کی دیوار تک پہنچا اور پھر کسی ماہر جمناسٹر کی طرح میں نے دیوار پر دونوں ہاتھ رکھ کر دوسری طرف چھلانگ لگا دی. میں دیوار کود کر ایک سمت دوڑا تو دفتن ہی میرے سامنے پیلے رنگ کی ایک لیموزین آ گئی. لیموزین پر ہوڈ چڑھا ہوا تھا اور اس کا ڈرائیور اس کے نزدیک ہی کھڑا ہوا انگلی میں چابی گھما رہا تھا. فیکٹری ایریا سے نکلنا خاصا دشوار کام تھا. اندر موجود لوگ صورتحال سے واقف ہونے کے بعد میرا تعاقب شروع کر سکتے تھے اور میں یہاں کے راستوں سے ناواقفیت کی بنا پر ان لوگوں کے ہاتھوں میں پھنس سکتا تھا. چنانچہ میرا رخ لیموزین کی طرف ہو گیا. ڈرائیور مجھے عجیب سے انداز میں دوڑتے ہوئے دیکھ کر چابی گھماتے گھماتے رک گیا تھا، لیکن اسے امید نہیں تھی کہ آنے والی قیامت اسی پر ٹوٹ پڑے گی. میں اس کے قریب پہنچا اور پوری قوت سے اس سے ٹکرایا. حالانکہ ڈرائیور نے بچنے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے جان بوجھ کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور اسے بھی سنبھال کر ایک گھونسا اس کی کنپٹی پر جڑ دیا. ڈرائیور بری طرح لڑکھڑا کر ایک سیڑھی پر گر پڑا تھا. چابی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر چند قدم کے فاصلے پر گری تھی. میں نے لپک کر چابی اٹھا لی اور پھر لیموزین کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا. حالانکہ ڈرائیور کی کنپٹی پر زوردار گھونسا پڑا تھا لیکن وہ جاندار آدمی تھا. دوسرے ہی لمحے وہ ہاتھ ٹیک کر کھڑا ہوا اور اس نے لیموزین کے سامنے آنے کی کوشش کی لیکن میں اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا. چنانچہ میں نے فوراً لیموزین کو ریورس گیئر میں ڈال کر تھوڑا سا پیچھے کیا اور اس کے بعد اس کا رخ فیکٹری کے گیٹ کی جانب کر دیا. اندر داخل ہوتے ہوئے میں نے دیکھا تھا کہ فیکٹری کے گیٹ کے دونوں بڑے پٹ کھلے ہوئے ہیں اور شاید کھلے ہی رہتے تھے. میں لیموزین سامنے والی سڑک پر لایا اور مین گیٹ کی طرف نگاہ دوڑائی تو اس وقت بھی گیٹ کھلا ہوا تھا. لیموزین سنسناتی ہوئی تیر کی طرح گیٹ سے باہر نکل گئی. دروازے کے دونوں سمت کھڑے ہوئے آدمی اچھل کر پیچھے ہٹ گئے تھے. صورتحال کا انہیں کوئی اندازہ نہیں رہا تھا اور عقب میں کیا ہو رہا تھا اس کا اندازہ مجھے نہیں تھا. میرا مقصد تو اس وقت صرف یہ تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے میں یہاں سے دور نکل جاؤں. گرین لاٹ اور اس کے نواح کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلومات حاصل نہیں تھی. چنانچہ جس سمت بھی منہ اٹھا کار دوڑاتا چلا گیا. ایک سیدھی سڑک میرے سامنے تھی جس کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا اختتام کہاں ہوگا. اس دوران میں نے اپنے سامان کو نہیں چھوڑا تھا. یہ سامان تو میرے لیے انتہائی قیمتی حیثیت رکھتا تھا اور اسی کی وجہ سے میری جیت تھی. سامان کا بیگ لیموزین کی پچھلی سیٹ پر پھینکنے میں نے غلطی نہیں کی تھی. ابھی تک مجھے تعاقب کے آثار محسوس نہیں ہوئے تھے. یقینی طور پر وہ لوگ پہلے اندر گئے ہوں گے، پھر انہوں نے جیمز پوکر کی لاش دیکھی ہوگی اور اس کے بعد جو کچھ بھی کارروائی ہو سکتی ہے وہ کریں گے. اس دوران مجھے دور نکل جانے کا موقع مل جائے گا. عقبی آئینے پر نگاہ دوڑاتے ہوئے میں نے دور دور تک کا جائزہ لے لیا تھا.
कोई गाड़ी मेरे पीछे नहीं थी। सड़क इंतहाई शफाफ और कुशादा थी। उसके दोनों जानिब दरख्त उगे हुए थे। खासा सरसब्ज और हसीन इलाका था। जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाने की मेरी खुशफहमी ज्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। फ्यूल पंप पर निगाह दौड़ाई तो पेट्रोल टैंक भरा हुआ था, लेकिन मेरे हसास कानों ने एक आवाज सुनी थी और ये आवाज अकब ही से आई थी। हेलीकॉप्टर की आवाज थी जो खासी नीची परवाज कर रहा था। मैंने गर्दन घुमाकर हेलीकॉप्टर की तरफ देखा। वो नीची परवाज करता हुआ उसी समता रहा था और उसकी रफ्तार बताती थी कि हंगामी परवाज है। मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त निकला। हेलीकॉप्टर चिंगाड़ता हुआ मेरे सर पर ही पहुंच गया था। थोड़ी दूर जाने के बाद वो पलटा और दफतन उससे मशीन गन से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मेरी कार से 2 फुट आगे सड़क पर किरचियां उड़ने लगी। कंक्रीट और तारकोल के नन्हे नन्हे जर्रात उड़कर कार के सामने वाले शीशे से टकराए थे। मैंने बमुश्किल तमाम ब्रेक लगाकर कार को कंट्रोल किया और उसे लहराता हुआ आगे बढ़ाने लगा। हेलीकॉप्टर फायरिंग करता हुआ दूर निकल गया था, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो फिर पलटा और कार की तरफ झपटा। जैसे ही वो मेरी तरफ बर्क रफ्तारी से बढ़ा, मैंने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा दिए और इस तरह हेलीकॉप्टर का निशाना फिर खता हो गया। वो गोलियां बरसाता हुआ आगे निकल गया था। इस तरह मेरी जान बच गई। आगे का इलाका कुछ और घना होता जा रहा था। मैंने कार फिर आगे बढ़ा दी। कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरह किसी ऐसे हिस्से में जा निकलूं जहां हेलीकॉप्टर वालों की निगाहों से महफूज हो जाऊं, लेकिन बज़ाहिर तो दूर दूर तक ऐसी कोई जगह नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि अतराफ में दरख्तों और झाड़ियों की बहुतायत थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर लिमोजीन को ड्राइव करता रहा। काफी दूर निकल जाने के बाद मेरे दाएं जानिब दरख्तों का सिलसिला किसी कदर कम होने लगा। यहाँ चट्टानें नजर आ रही थीं। बाईं समत का जंगल अलबत्ता घना और दुश्वार गुजार होता जा रहा था। एक लम्हे के लिए मेरा जहन मअत्तल हो गया। हेलीकॉप्टर रुख बदल बदल कर मुसलसल मशीन गन से फायरिंग कर रहा था। यकीनी तौर पर वो लोग मुझे हलाक कर देना चाहते थे। बिलाखिर सूरत हाल मेरे बस से बाहर हो गई। मैंने चट्टानी इलाके की तरफ एक जगह ढलान देखी थी। चुनाचे और कुछ न बन सका तो मैंने लिमोजीन को आगे बढ़ाया और ढलान पर उतार दिया। ढलान से उतरकर लिमोजीन का एक दरवाजा एक बड़ी चट्टान से टकराया था और कुछ इस तरह पिचक कर रह गया था कि अगर मैं उसकी समत होता तो यकीनी तौर पर लोहे के टुकड़े मेरे बदन में घुस जाते। मजबूत कार थी, इसलिए मैं बच गया। हेलीकॉप्टर फजा में एक मुख्तसर सा दायरा बनाकर दोबारा मेरी तरफ बढ़ रहा था और अब मेरे लिए इसके सिवा और कोई चाराए कार नहीं था कि लिमोजीन को छोड़कर उन चट्टानों में पनाह लूं। जिंदगी और मौत की आंख मचोली ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सकती थी, लेकिन ढलान से उतरने के बाद का मैदान खासी दूर तक सपाट चला गया था। इसलिए मैं कार को आगे बढ़ाता रहा कि जहां तक पहुंच सके ठीक है। हेलीकॉप्टर ने भी अपना रुख बदल लिया था और उसी समत आ रहा था। दफतन वो फिर नीचे झुका और इस बार कार उसका निशाना बन गई। गोलियां कार की बॉडी पर लगीं और उसमें सुराख करती हुई दूर तक निकल गईं। मैंने बेख्तियार ब्रेकों पर दबाव डाल दिया। गाड़ी एक झटके से रुक गई। शायद कोई गोली इंजन में घुस गई थी। हेलीकॉप्टर एक बार फिर वापस पलटकर आतिशी लकीरें बनाता हुआ मेरी समत ही आ रहा था। दफतन एक हल्का सा धमाका हुआ और धुएं का एक मरगूला मेरे चेहरे से टकराया। मुझे यकीन था कि इस बार गोलियां कार के रेडिएटर में पैवस्त हुई होंगी। हेलीकॉप्टर कुछ आगे निकल गया था और थोड़ा सा ऊपर उठ गया था। चूंकि पास नुकीली चट्टानें खासी बुलंद थीं और इतनी नीची परवाज करते हुए हेलीकॉप्टर को संभाले रखना खासा मुश्किल था, इसलिए पायलट को हेलीकॉप्टर बार बार ऊपर उठाना पड़ता था और फिर सही समत का अंदाजा करने के बाद वो कार की जानिब झुकता था। कार का इंजन चूंकि बंद हो चुका था, इसलिए अब उसमें बैठे रहना हिमाकत थी। मैंने हैंडल को पकड़ा, हेलीकॉप्टर की तरफ देखा और दरवाजा खोलकर नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन एक और खौफनाक इंकिशाफ हुआ। दरवाजे का हैंडल जाम हो गया था। कार हालांकि दाईं समत से चट्टान से टकराई थी और दाईं समत का दरवाजा टूटकर अंदर आया था, लेकिन बाईं समत भी कुछ न कुछ मुतासिर हुई थी, इसलिए हैंडल जाम हो गया था। हेलीकॉप्टर इस बार फिर दुरुस्त निशाना लेता हुआ मेरी समत आ रहा था। ये सूरत हाल वाकई खौफनाक हो गई थी। अगर उस कार का सही निशाना ले लिया गया तो मेरी मौत यकीनी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही था। मैंने अपने दाहिने पांव पर बंधा हुआ खंजर खींचा और फिर हुड के कैनवस में उसकी नोक डालकर हुड को ऊपर तक चीर दिया। उसी वक्त हेलीकॉप्टर मेरे सर पर पहुंच गया और इस बार भी उसने गोलियों का ब्रस्ट निहायत कामयाबी से मारा था। अगर मैं फटे हुए हुड में से एकदम पूरी कुव्वत से बाहर छलांग न लगा देता तो मेरी मौत यकीनी थी, क्योंकि इस बार वो ड्राइविंग सीट को निशाना बना चुके थे। नुकीली झाड़ियों ने मेरा इस्तकबाल किया और मेरे हाथ पांव बुरी तरह छिल गए।
मैं जमीन पर गिरा तो कोई लंबा कांटा मेरे दाहिने कूल्हे में घुस गया और शदीद तकलीफ होने लगी, लेकिन उस वक्त उस तकलीफ पर तवज्जो देने का मौका नहीं था। मैंने उन खारदार झाड़ियों में दूर तक दौड़कर हेलीकॉप्टर के नए निशाने से अपनी जान बचाई। मौत मेरे साथ साथ सफर कर रही थी, मगर मैं उससे हार मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं झाड़ियों के खारदार होने के बावजूद उनके दरमियान दौड़ता हुआ किसी ऐसी जगह की तलाश में सरगर्दा था जहां मुझे पनाह मिल जाए। दफतन एक हौलनाक धमाका हुआ और लिमोजीन के चीथड़े उड़ गए। यकीनन उसका पेट्रोल टैंक फट गया था। फिर फौरन ही 2-3 धमाके और हुए और लिमोजीन से सुर्ख शोले बुलंद होने लगे। पूरी गाड़ी उन शोलों की लपेट में आ गई थी। उन धमाकों ने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मैं फिर हरकत में आ गया। गाड़ी तबाह करने के बाद उन लोगों ने ये यकीन नहीं कर लिया होगा कि मैं भी उस गाड़ी के साथ साथ फना हो गया हूँ। मैंने हेलीकॉप्टर को एक लंबा चक्कर लगाकर इस बार कुछ आगे जाते हुए देखा और मेरी आंखें हैरत से फैल गई थीं। क्या उन लोगों को यकीन हो गया था कि मैं भी लिमोजीन के साथ ही हलाक हो गया हूँ? अगर ऐसी बात है तो लुत्फ आ जाएगा। उन बदहवास लोगों ने शायद मुझे कार से बाहर छलांग लगाते हुए नहीं देखा था, लेकिन अभी ये सिर्फ एक मफरूजा था। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि उन लोगों का अगला कदम क्या होगा। हेलीकॉप्टर की आवाज मादूम होते होते खत्म हो गई। बज़ाहिर अंदाजा ये होता था कि वो लोग चले गए हैं, लेकिन मैं खुशफहमी का शिकार नहीं था। लिमोजीन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी और उसकी आग अब भी बुलंद हो रही थी। धुएं के मरगूले फजा में उठ रहे थे, जिसकी वजह से फजा में काफी कसाफत फैल गई थी। रफ्ता रफ्ता शाम भी होती जा रही थी। मैंने जब ये महसूस कर लिया कि अब फिलहाल मुझे कोई खतरा नहीं है, तो फिर एक जगह झाड़ियों में रुककर सांसें दुरुस्त करने लगा और फिर अपने बदन में चुभे हुए कांटों की तरफ तवज्जो दी। कूल्हे में चुभा हुआ बड़ा कांटा सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा था। मैंने उसे बाहर खींचा तो वो तकरीबन 1.25 इंच लंबा था और उसका आधा हिस्सा मेरे बदन में घुस गया था। उसे निकालने के बाद तकलीफ में कमी हो गई थी। बाकी जिस्म पर पड़ी हुई खराशों से भी हल्का हल्का खून रिस रहा था। रात की स्याही ने आन की आन में माहौल को अपनी लपेट में ले लिया। मैंने अपनी जगह छोड़ी और लिमोजीन के करीब पहुंच गया। हर चंद के तारीकी फैल चुकी थी, लेकिन अभी इतना अंधेरा नहीं था कि कुर्ब जवार का माहौल नजर न आता। थोड़े ही फासले पर मेरा बैग पड़ा हुआ था, जो गालिबन धमाके की वजह से उछल कर बाहर आ गया था। उसका एक हिस्सा किसी कदर जल गया था, लेकिन अंदरूनी सामान महफूज था। मेरी खुशी की इंतहा न रही। उस बैग की मुझे अशद जरूरत थी। लिबास वगैरह का कोई मसला नहीं था, लेकिन जो दूसरी अहम चीजें थीं उन्हें निकालना जरूरी था। चुनाचे मैंने बैग खोलकर उसमें से अहम सामान निकाला और जिस तरह भी मुमकिन हो सका अपने लिबास के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपा लिया। अगर उन लोगों को मेरी मौत की तस्दीक मंजूर हुई तो वो यकीनन लिमोजीन के आसपास मेरी लाश तलाश करेंगे। चुनाचे लिमोजीन से दूर हट जाना ज्यादा बेहतर था। अब मसला ये पैदा होता था कि उस इलाके में कोई ऐसी जगह तलाश की जाए कि यहाँ से सही रास्ता दरियाफ्त हो सके। मैं अभी किसी जाल में नहीं फंसना चाहता था और कोई रिस्क नहीं ले सकता था। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती रही और फिर आसमान पर चांद की रोशनी नजर आई। मैं अपनी जगह से हटकर वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन अभी मुझे सफर करते हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि दफतन हवाओं के दोष पर कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं अपनी जगह ठिठक कर रुक गया। गोया मेरा अंदाजा गलत नहीं था। वो लोग ये सोचकर मुतमईन नहीं हो गए थे कि लिमोजीन तबाह हो गई है। वो मुझे तलाश कर रहे थे और यूं महसूस होता था जैसे मेरा उनसे ज्यादा फासला न हो। मैंने अपने आप को झाड़ियों में महफूज कर लिया, लेकिन उनके कदमों की आवाजें मुझे करीब ही सुनाई दे रही थीं। मैं झाड़ियों में अच्छी तरह छुप गया। फिर किसी की भारी आवाज सुनाई दी। टॉर्चें नहीं हैं तुम्हारे पास? चांद की रोशनी तुम्हारी मुआवनत नहीं करेगी। और दूसरे लम्हे 5-6 तेज रोशनी वाली टॉर्चें रोशन हो गईं। वो झाड़ियों पर टॉर्चें डाल डाल कर मुझे तलाश कर रहे थे और टॉर्चों की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता एक एक झाड़ी को कुरेदती हुई मेरी जानिब बढ़ रही थी। अब इंतजार बेसुध था। हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने का मतलब ये था कि इत्मीनान से मुझे इन्हीं झाड़ियों में मार लिया जाए। इसलिए मैंने अपनी जगह से रेंगना शुरू कर दिया। थोड़े ही फासले पर एक ढलवान शुरू हो गई और नीचे न जाने कहां तक चली गई थी। खासी फिसलन वाली ढलवान थी। अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल था। अगर वहां झाड़ियां न होती तो कहीं भी फिसल कर मैं न जाने कितनी गहराइयों में पहुंच सकता था। टॉर्चों की रोशनियां अब उस झाड़ी से आगे बढ़ रही थी जहां चंद लम्हे पहले मैं मौजूद था। थोड़ी देर तक मैं उसी तरह आगे बढ़ता रहा और फिर मेरे सामने एक चट्टान हायल हो गई। आगे रास्ता तकरीबन बंद हो गया था। चट्टान पर चढ़े बगैर दूसरी तरफ उतरना मुमकिन नहीं था। अगर मैं चट्टान पर चढ़ता तो उनकी टॉर्चों की रोशनियों की जद में आ जाता। फौरी तौर पर कोई बात जहन में नहीं आई कि क्या करना चाहिए।
हर तरफ फैली चांदनी के अलावा टॉर्चों की रोशनियां भी मेरे लिए खतरे का बायस थीं, जो मुसलसल मेरा ताक़ुब कर रही थी। चांद एक लम्हे के लिए बादलों में छुपा तो मैंने चट्टान पर चढ़ने का खतरा मोल ले लिया और फिर इस फुर्ती से ऊपर चढ़ा कि मुझे खुद भी अंदाजा नहीं हो सका। मैं चट्टान के ऊपर पहुंच गया और उसी वक्त रोशनियां चट्टान पर पड़ी, लेकिन मैं उनकी जद से ऊपर था। दूसरी तरफ थोड़ा सा सपाट हिस्सा नजर आ रहा था। दफतन कोई जोर से चीखा। अल्फाज तो मेरी समझ में नहीं आ सके, लेकिन टॉर्चों की रोशनियां एकदम बुलंद हो गईं। मैं फुर्ती से छलांग लगाकर आगे बढ़ गया था। मैंने उन लोगों को देख लिया था जो मुझे चट्टान पर चढ़ते देख चुके थे। पूरी तरह मुसल्ला अफराद थे। फौरन ही मुझे गोलियों की आवाजें सुनाई दी और फिर वो चारों तरफ से सिमट कर उस चट्टान की जानिब मुतवज्जे हो गए। मैं जिस हद तक आगे बढ़ सकता था बढ़ता रहा, लेकिन वो ऊपर आ गए थे और रोशनियां किसी भी लम्हे मुझे अपनी गिरफ्त में लेने वाली थीं। उस वक्त एक तनावर दरख्त ने मेरी मदद की और मैंने अपने आप को उसके तने के पीछे छुपा लिया। सिर्फ एक लम्हा गुजरा था कि टॉर्च की रोशनी ऐन उसी जगह पड़ी जहां मैं चंद लम्हे कबल मौजूद था। उन्होंने मुझे दरख्त के पीछे छुपते हुए नहीं देखा था, लेकिन उनका रुख उसी तरफ था और अब मुझे कुछ न कुछ करना ही था। दूसरे लोग शायद मुख्तलिफ हिस्सों में निकल गए थे, लेकिन 2 अफराद उसी समत आ रहे थे जहां मैं छुपा हुआ था। फिर जैसे ही एक आदमी उस दरख्त की तरफ आया, मैंने बर्क की सी तेजी के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके मुंह पर जमा दिया और उसे अपनी जानिब खींच लिया। इससे पहले कि वो हाथ पांव मार सकता, मैंने उसके नरखरे पर दोनों अंगूठे रखकर इस कुव्वत से दबाए कि उसके हलक से आवाज भी न निकल सकी। मेरे अंगूठे गोया उसके नरखरे में घुस गए थे। चंद लम्हों के अंतर अंतर उसके बदन का तशन्नुज खत्म हो गया। दूसरे आदमी को शायद अभी तक सूरत हाल का अंदाजा नहीं हो सका था, लेकिन जब मैंने उसे छोड़ा तो वो एकदम जमीन पर गिर पड़ा और दूसरे आदमी ने उसकी आवाज सुनते ही फुर्ती से दरख्त की समत रुख कर लिया। लेकिन मैंने जमीन पर लोट लगाकर अपने आप को उसकी इम्कानी फायरिंग से बचाया और साथ ही उसकी टांगों को अपनी लपेट में लेकर उसको भी नीचे गिरा दिया। फिर दूसरे ही लम्हे मैं उस शख्स के ऊपर सवार था और इस बार मैंने अपने लंबे चाकू की धार उस आदमी के हलक पर फेर दी। मेरे हाथ का दबाव जबरदस्त था। चुनाचे गर्दन इस तरह कट गई कि वो खरखराने के सिवा कोई आवाज ना निकाल सका। दूसरे लोग अभी इस तरफ मुतवज्जे नहीं हुए थे, अलबत्ता सबके सब चट्टान पर चढ़ाए थे और टॉर्चों की जबानें हर तरफ जमीन चाट रही थीं। मैंने चंद लम्हात रुककर सूरत हाल का जायजा लिया। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उन लोगों ने कौन कौन से इलाके कवर कर रखे हैं। किसी ऐसी समत की तलाश थी मुझे जो उनसे खाली हो, और इसके लिए उसी दरख्त की सीध मुनासिब महसूस हुई। मैं बड़ी एहतियात से पीछे हटने लगा और जब मुझे एहसास हुआ कि वो लोग दूर रह गए हैं तो मैंने दौड़ लगा दी। आगे क्या है, ये जंगल कहाँ तक चला गया है, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। बस मैं जान तोड़ कर दौड़ रहा था, बदन पर लगने वाली खराशों में उठती हुई टीसों से बेनियाज। न जाने मैं कितनी दूर निकल आया था। फिर मुझे एक रोशनी नजर आई और मेरे कदम सुस्त पड़ने लगे। कोई आबादी थी। उस वक्त सबसे बड़ी तलब एक पनाहगाह की थी, एक ऐसी पनाहगाह जहां सुकून के चंद लम्हात मिल जाएं। एक अहाता नजर आया जिसे उबूर करना मुश्किल न था। लकड़ी के उस अहाते की बुलंदी को एक छलांग में उबूर करके मैं एक लम्हे के लिए रुका। उस जगह के बारे में कोई अंदाजा नहीं हो पा रहा था, अलबत्ता वो रोशनी अब साफ नजर आ रही थी और लकड़ी की बनी हुई एक इमारत भी। मेरे कदम खुद ब खुद उस इमारत की जानिब उठे। इमारत का सदर दरवाजा बंद था, लेकिन बाईं समत एक ऐसी जगह नजर आई जहां मैं पनाह ले सकता था। यूं भी अब किसी जिद्दोजहद की सकत नहीं रह गई थी। इमारत के मकीन न जाने कौन हो और मेरे साथ क्या सलूक करें। चुनाचे मैंने वही गोशा संभाल लिया और निढाल अंदाज में खुद को समेट कर लेट गया। फाइल मेरे सीने से बंधी हुई थी और मेरा सामान भी बुरी तरह मेरी जेबों में ठुसा हुआ था। पलकें एक दूसरे से जुड़ रही थीं। ये नींद नहीं बल्कि कोई और कैफियत थी और मैं ज्यादा देर तक खुद को उस कैफियत से न बचा सका। पलकें जुड़ गईं और उसके बाद दुनिया और माफिया की खबर न रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।